Good morning, Rohini, Chanchal, Ankita. Welcome to the class. Am I audible? Fine. Is the slide visible? So we are doing principles and practices of management and modern approach or contemporary approach of management. Today we are going to do system approach. So what do you mean by system approach, or what is this modern approach talking all about? So when we talk about system approach believes that organization is a system. It is a system with an interrelated subparts where a process is there. A process of what? Process of input. Complete process happened, process input. So this is middle transformation or middle process conversion and the output. And the system, when it is involved in this process, it always interact with external environment. So there is an interaction of this complete organization with the external environment. ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये कहना है कि सिस्टम अप्रोच मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन सब पार्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, सब पार्ट्स है, और इन सब पार्ट्स का इफेक्ट एज एन होल लेंगे. होल यानी साथ में, अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में कलेक्टिवली काम करते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं, अचीव होते हैं. राइट, तब जाके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या होंगे, अचीव होंगे. अब इसके जो ऑथर्स हैं, देयर आर दी ऑथर्स हु आर एसोसिएटेड विद द सिस्टम अप्रोच, जो आपको पता होना चाहिए. लिडविंग वॉन बेंटरफ्लाई, लॉरेंस जे हेडरसन, डब्ल्यू जी स्कॉट, डेनियल नाट्स, रॉबर्ट एल खान, डब्ल्यू बकले एंड जेडी थॉमसन. प्लीज डू रिमेंबर, इनके नाम आपको याद रखने हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है that among the following are associated with the system approach, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब सिस्टम अप्रोच के अंदर में ना दो तरीके के अप्रोच हो सकते हैं. एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम. अब ओपन सिस्टम में क्या होगा कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जहां पे भी लोकेटेड होती है उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल यानी खुद के अंदर की पॉलिसी स्ट्रक्चर, खुद का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वो इंटरनल हो गया. एक्सटर्नल यानी वो जहां लोकेटेड है, बिजनेस एनवायरमेंट, इकोनॉमी, कस्टमर्स, देन योर मार्केट, देन योर लीगल पॉलिसीज. ठीक है, ये सारे एनवायरमेंट है. तो ओपन सिस्टम के अंदर में देर इज ऑलवेज एन गिव एंड टेक, देर इज ऑलवेज एन इंट्रैक्शन विथ एक्सटर्नल. लेकिन जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम बिलीव्स दैट उनका आपके बाहरी लोगों से या बाहर एनवायरमेंट से कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है. दोनों के फीचर्स हम स्टडी करेंगे. So this author viewed organization as an organic and open system. Organic का मतलब one which is ready to learn, open, which is composed of interacting interdependent parts called as subsystem. A subsystem approach
took upon management as a system as an organized whole, सब एक साथ. So सब parts भी हैं, but they are all working in unity, integrity. System approach is based on generalization that everything is interrelated and interdependent on each other. Features, very important, do remember. A system consists of interacting elements. Interacting elements का मतलब HR डिपार्टमेंट है तो वो बाकी के साथ में इंटरेक्ट करेगा. प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, IT डिपार्टमेंट, दे ऑल आर इंटरेक्टिंग and collectively as an unified whole they produce it the result. So system consists of interacting, it is set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole. Then it consists of various subsystem, अलग अलग इसके subsystem हैं, and these subsystems are interrelated and interdependent to each other. कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं करता, अलोन काम नहीं करता. तो अगर बोलेंगे कि एचआर का तो कोई रोल ही नहीं है, एचआर पे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, या एचआर का आईटी में कोई रोल नहीं है, एचआर वालों का मैनेज अकाउंट्स में कोई रोल नहीं, तो नहीं, हर एक डिपार्टमेंट एक साथ में इंटर रिलेटेड है. द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम हैज अ बाउंड्री. देयर वुड बी ऑलवेज अ क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस स्टेटिंग that this is internal factors of organization and this is external, right? So there would be a boundary which would be determining internal and external parts. The system does not exist in vacuum. It means it has an entropy. Entropy means it exists in an environment. It deals with an environment where it is existing. There would be an effect, or there would be the variables that would be affecting the organization. तो मेरा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि लॉ, इंडिया में जो लॉ बन रहे हैं, जहाँ इंडिया में जो पॉलिसीज हो रही है, इंडिया में अगर जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस बदल रहे हैं, उसका मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं है. नो, ऐसा नहीं. अगर इंडिया की इकोनॉमी चेंज हो रही है, पूरे इंडिया में बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे को कोई अफेक्ट नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं. इट डज नॉट एक्ट इन अ वैक्यूम. It will always receive an information, material and energy from other system as input. This input undergo a transformation process within a system and leave the system output to the other. तो एक ही प्रोसेस है, बाहर से आपको इनपुट मिलेगा, आप ट्रांसफॉर्म करेंगे और वो क्या होगा, आउटपुट में कन्वर्ट. An organization is a dynamic system as it is responsive to environment. Dynamic means it keeps on changing. It's not rigid and it should be dynamic. It should be flexible. It is vulnerable to change in its environment. Basic elements, again important, एग्जाम में पूछा जाता है बेसिक एलिमेंट. अब ये बेसिक एलिमेंट के अंदर में देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स. इन एवरी एलिमेंट यू शुड नो हम इनपुट किसको कहेंगे, हम आउटपुट किसको कहेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किसे कहेंगे. ठीक है. सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, ये तो मेन है. ठीक है. इसके अलावा जो एड ऑन करते हैं, जैसे आपके वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल यहाँ पे इसलिए ऐड ऑन किया गया है कि उसका इफेक्ट होता है. सो इनपुट के अंदर क्या होगा, वो चीजें जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रही है. तो क्या क्या हो सकता है, पीपल. सो पीपल आर कमिंग फ्रॉम वेयर, जो भी ह्यूमन रिसोर्स वहां पे काम कर रही है वो बाहर से ही आ रही है ना. कंपनी इज नॉट मेकिंग द पीपल इनसाइड, it is the people coming from outside. Capital, investment, managerial skills as well as the technical knowledge of the skills, everything. This is what input. ये input होगा तब चीजें process होगी. It also include the various claimant group of people making demand on organizations such as employees, consumers, suppliers, stakeholder, federal and the state government. इनका भी कुछ ना कुछ input होता है. ठीक है. एम्प्लॉयज कुछ डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे कुछ डिमांड कर रही है, कंज्यूमर्स आपसे कुछ, तो उनके जो इनपुट्स आ रहे हैं, उनके जो डिमांड्स आ रहे हैं, वो इनपुट हो गए. देन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जब इनपुट आ रहा है, जब इंफॉर्मेशन आ रहा है, यू स्टार्ट कन्वर्टिंग, राइट, यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग देम. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. सो फोकस basically in the transformation process is to transform the information effectively and efficiently in an output.
external variable. So now when this transformation process is happening, हमेशा एक्सटर्नल एनवायरमेंट से देयर वुड बी एन इफेक्ट, वहां से कोई ना कोई वेरिएबल्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे. आउटपुट, इनपुट, once being utilized, one being transferred, one being used, gives you the output. ठीक है. और ये आउटपुट्स किस फॉर्म में होते हैं? प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रॉफिट, सैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटीग्रेशन ऑफ गोल्स ऑफ वेरियस क्लेमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फाइनली जिसे हम फीडबैक भी कहते हैं, री एनर्जाइजिंग द सिस्टम. देखो, जब आउटपुट बन रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, दिस ओनली री एनर्जाइजेस द सिस्टम, दिस ओनली बिकम अ न्यू इनपुट. तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो क्या पता चल रहा है कि हमें और प्रोडक्ट्स बनाने, वी आर डूइंग गुड, लेट्स मेक मोर प्रोडक्ट. तो जब आप सेटिस्फाइड हो, कस्टमर सेटिस्फाइड है, यू गेट इनपुट्स. सो आउटपुट एक तरीके का फीडबैक है जो नेक्स्ट साइकिल के लिए या नेक्स्ट सिस्टम के लिए आउटपुट इनपुट का रोल प्ले करता है. सो दिस आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच. सो दिस इज द प्रोसेस. इसमें कई बार एग्जाम में पीवाईक्यू है कि पूछा गया था एक्चुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इनपुट इन द प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस. तो रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये इनपुट हो गए. प्रोसेस में आएगा आपका एम्प्लॉयज वर्क एक्टिविटी, वो डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की एक्टिविटी, मेथड्स क्या यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी. एंड आउटपुट में प्रोडक्ट, सर्विस, फाइनेंशियल रिजल्ट, इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिजल्ट्स. ठीक है. अब दो तरीके के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम which allow the flow of information and the ideas between the department and even outside the organization. Department के बीच में भी, मतलब उनका interaction clear है. They are not restricting themselves कि नहीं HR का department, I mean to say, if there is some information which is to be shared, it would be shared. They are more flexible, open to learn. They are ready to accept the changes. They are ready to respond to the information being received. ठीक है. Example for this is an advertising firm that constantly studies the marketplace. So it keeps on studying the advertising. Advertisement जब बनता है या advertising consultancy होती है, it keeps on studying the market and then frame the advertisement. Right? उसको नए चीजें अपडेट क्या हो रही है वो जानना जरूरी है. ये हो गया ओपन सिस्टम. अब जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे और हेनरी फेयोल के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, इनको क्लोज सिस्टम माना जाता है. इनको क्लोज सिस्टम क्यों माना जाता है? बिकॉज साइंटिफिक अप्रोच भी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक रूल, यानी इनका अनसर्टेनिटी को फेस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. दे आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट, दे restrict themselves, right? Their processes are rigid. ऐसा ही करना है, आपको आना है ऑफिस में, यही करना है, कुछ भी नया इनोवेशन नहीं होता है. हम उनको क्लोज सिस्टम कहते हैं. सो क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डज नॉट कम्युनिकेट और डिपेंड ऑन अदर एरियाज. दिस सिस्टम कैन बी एफिशिएंट बिकॉज देयर आर वेरी stringent procedure to follow and no outside influence to interfere. For example, assembly line department would most likely function as a closed system. ठीक है. The three main models under closed or rational system are scientific management, administrative management and Webrian bureaucracy. अब ओपन सिस्टम में क्या बचा हमारा? ओपन सिस्टम में बचा ह्यूमन रिलेशन. क्यों? Because it accepts that people keeps on changing, because it accepts that there is a social group, there are the changes. So hence this is the first model, first time which accepted organization as an open system. Now, Daniel Katz and Robert Kahn's framework for the open system. Now, these are the people, अगर आपको जो एग्जाम में ऑथर आते हैं, who are the authors associated with the open system? These are the two authors. They have developed the framework for the open system that consists of वही 4 features जो हमने पीछे पढ़े. Energy inputs means things which are going in transformation process, energetic output, and recycling is feedback. Again, you are putting the energy. The same thing, you can just go
Go by yourself. Now, James D. Thompson is an author. Said he has completely neglected the closed system idea. थॉमसन का मानना ऐसा हो ही नहीं सकता. It's not possible. It's not possible for the closed system to occur at the organization as a whole. Closed system approach may be possible only at technical or organizational level. Technical मतलब टेक्निकल नॉलेज. तो मेरे को अगर रिक्रूटमेंट की बात करूं तो रिक्रूटमेंट केवल एचआर वाले को आएगा. चलो समझ गए. तो ये क्या हो गया, आपका क्लोज्ड हो गया ना. आपको किसी और एम्प्लॉय से बात करना है, वर्कर से बात करना है, बिकॉज यू कैन टॉक टू ओनली एचआर. सो इट इज रेस्ट्रिक्टेड. सो इट इज क्लोज्ड. ऑपरेशन लेवल पे भी, ऑपरेशनल लेवल पे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो उनको ही परफेक्शन में आ रही है. सो नाउ दिस थॉमसन हैज गिवन अ थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस. इनके हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. एंड देयर इज एन टास्क इंटरडिपेंडेंस. मींस व्हेन पीपल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डूइंग सम टास्क, कुछ काम कर रहे हैं, दे हैव इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर. एंड 3 types of interdependence which he has given: pooled interdependence, sequential interdependence, reciprocal. Pooled का मतलब है, here in an organization it is organized in such a way that output for every department would be input for somewhere. यानी कहीं ना, this is कहीं ना कहीं पे, everywhere within the organization, the output for every other department may be a input for other. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चल ही रहा है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है. देयर इज नो प्रोसेस कि सीधे जाएगा, वर्टिकल जाएगा, नो, एवरीवेयर. सीक्वेंशियल प्रोसेस और सीक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस, यानी देयर इज अ प्रोसेस, ऐसे करके एक प्रोसेस है, दिस आउटपुट इज इनपुट फॉर दिस, दिस आउटपुट इज इनपुट फॉर दिस, एंड इट्स. सो सीक्वेंस में चलता है. यहां पे कुछ भी हो सकता है, कहीं का भी कुछ भी. रेसिप्रोकल, गिव एंड टेक. आपका आउटपुट मेरा इनपुट आपका आउटपुट. ठीक है. सो दिस इज लाइक कस्टमर एंड कस्टमर सर्विसेज. कस्टमर को आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो फीडबैक दे रहे हैं, देन यू आर इंप्रूविंग योर सर्विस, अगेन दे आर गिविंग द फीडबैक. दैट इज रेसिप्रोकल, गिव एंड टेक. बोथ टीम्स रिलाई ऑन ईच अदर. These are the main characteristic of any organizational system. Consist of subsystem, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. होलिज्म, एज एन होल. डिसीजंस may be taken by subsystems, but they are taken in such a way that it affects whole system. Holism. Synergy. Collective output of whole system is greater than sum of output of subsystem. HR का कुछ सब IT का कुछ आउटपुट होगा, लेकिन कलेक्टिवली जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीव किया, दैट इज मोर. There are 2 types of system: closed and open system. System boundary, separation which divides internal factors and external factors. Entropy, it is the tendency of a system to deteriorate or break down over the time. Means flexibility. It will change. It will act in environment. It will change. ठीक है? So see, this is the question which was asked in exam. Now, the last one. Contingency approach. J.W. Lorsch and P.R. Lawrence. अब contingency approach क्या था? Contingency approach कहता है that there is no best way of doing anything. No best way. ये किसने कहा था कि there is one best way? This is scientific approach. There is always one universal or one best way of managing the people, company. But contingency approach says no. Every situation is different. Every manager is different. Every environment is different. So the best way to manage is contingency approach. Means analytical approach. Identify the situation. So management problems are different under different situation and required to be tackled as per the demand of situation. You have to, before you start taking the decision, analyze the situation. Contingency theory was developed by J.W. Lorsch and P.R. Lawrence,
who were critical of other approaches, presupposing one best way, opposing. So they were opposing, so that there is no one best way. So there is an author, Cast and Rosling, they have also contributed. Again, not that important his contribution, but this is important. Features of contingency approach. 3 characteristic of contingency approach are an open system perspective. Yes, contingency का मतलब क्या, आप अपने सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो. सो व्हेन यू आर एनालाइजिंग योर सिचुएशन मींस यू आर रेडी टू लर्न, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स. प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल स्टडी, प्रैक्टिकली जो हो रहा है, कोई थ्योरी बेस नहीं है कि हाँ ये बना दिए हैं थ्योरीज और चल रहे. नो, प्रैक्टिकली. मल्टीवेरिएंट चेंजिंग, एक ही कोई फॉर्म में नहीं है. इट कैन बी इनटू मल्टीवेरिएंट. नाउ फीचर्स, नॉन यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. नॉन यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है दैट मैनेजमेंट हैव सम प्रिंसिपल्स व्हिच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यानी हर जगह वो सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा. लेकिन कंटीजेंसी अप्रोच कहती है नो, देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग, देयर इज नॉन यूनिवर्सैलिटी. कंटीजेंसी मींस your decisions, management decisions should contingent match upon the situation, environment, the decisions, the policies which are framed in organization, they would always get affected by the environment. So you should be flexible enough to adjust the environment. Diagnostic. Contingency approach is considered to be diagnostic. Why? Because in order to anticipate the situation, कि क्या हो रहा है, ये situation क्या है, आप में वो डायग्नोस्टिक स्किल होनी चाहिए. दैट आर यू रेडी टू फेस दिस चेंज एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम दिस चेंज. ऐसा क्या है. तो जब तक आप डायग्नोस नहीं करेंगे कि आप एन ऑर्गेनाइजेशन क्या हो और आप क्या करना चाह रहे हो. ह्यूमन रिलेशन, फोकसेस ऑन ह्यूमन रिलेशन. व्हाई? इट्स अबाउट कंटीजेंसी. मैनेजर्स ट्राई टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज. दे have good communication skill, they have good human relation skills, they bring the employees to bring about the stabilization. वो employee का participation रखते हैं. Information and communication, managers should have proper information and communication flow in order to deal with the environment which keeps on changing. ये क्या है? Features. Which approach suggests that there is no best way to handle any management problem and there is no best organizational structure to suit all situations? So obviously it is contingency approach. The same thing, only the little bit description is given here कि situational approach को ही हम contingency approach कहते हैं. So contingency approach या situational approach believes or works on the belief system that every situation is different. Every situation is different. So manager should make sure that his decisions are contingent. Contingents mean matching, aligning the situation. तो मैं वही डिसीजन लूंगी जो मेरे सिचुएशन को मैच करेगी. ठीक है. एंड इट इज एक्सेप्टिंग. कंटीजेंसी जो थियोरी है वो सिस्टम थियोरी के नेचर को, फीचर्स को एक्सेप्ट करती. जैसे कि दिस इज ऑल्सो एन ओपन सिस्टम. कंटीजेंसी थियोरी भी बोलती है कि ओपन सिस्टम है. कंटीजेंसी थियोरी भी कहती है कि सब पार्ट्स हैं. जैसे कि आपकी सिस्टम थियोरी कहती है कि वहां सब पार्ट्स हैं, यहां पे भी सब पार्ट्स. ठीक है. कंटीजेंसी थियोरी ऑल्सो प्रपोजेस स्ट्रक्चरल चेंजेस और डिजाइन, लीडरशिप स्टाइल एंड कंट्रोल सिस्टम. तो आपको जैसे चेंज होना है, ऑर्गेनाइजेशन को जैसे चेंज होना है एनवायरमेंट में फिट होने के लिए, उसके लिए चाहे आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े, चाहे रीडिजाइन करना पड़े, चाहे लीडरशिप स्टाइल बदलनी पड़े, चाहे कंट्रोल सिस्टम बदलना पड़े, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. ठीक है. कंट्रीब्यूटर्स, बर्न्स एंड स्टॉकर, who has given 2 types of organization, mechanistic and organic. अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में. ठीक है. जॉन वुडवर्ड, she analyzed the influence of technology on organization. इनको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि ये कहाँ के कंट्रीब्यूटर हैं कंटीजेंसी के. JW लॉर्स एंड PR लॉरेंस, ये तो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं फॉर व्हाट? कंटीजेंसी थ्योरी.
दैट वाज योर कंटिजेंसी अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच या कंटेम्पररी अप्रोच के अंदर में एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, माइकल पॉटर हैज गिवन हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और उसके अंदर में ही हैज गिवन दी 5 contributions. Out of this proposed 5 models, concept of competitive advantage, generic strategies are highly important. इनको तो पढ़ना ही है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। Core field under his studies the company strategy and the competition. सबसे पहले तुम समझते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रैटेजी is a vision or is a place or it is a position or it is a status which I want to achieve as an organization, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। विजन नहीं लेते हम, पोजीशन लेते हैं, प्लेस लेते हैं या स्टेटस लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी हर ऑर्गेनाइजेशन की होती है, एंड देयर इज अ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इंटेंट मीन्स व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर आपका विजन आता है, मिशन आता है, सीक्वेंस में मैं लिख रही हूं, मिशन आता है, गोल्स आते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव। ये आपका इंटेंशन है, स्ट्रैटेजिक इंटेंशन, यानी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका इंटेंशन क्या है, वो कैसे अचीव करेंगे। तो पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को अचीव करके गोल्स करेंगे, गोल से आपके मिशन पूरे होंगे, मिशन से आप अपने मेन विजन को पूरा करेंगे। ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? An organization which is using strategic management approach, it will align all its functions, all its departments, its structure, its policies, its procedures, everything with strategy of organization. यानी जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी है, मेरे डिपार्टमेंट उसी दिशा में काम करेंगे, मेरे को वही काम करना है, अननेसेसरी की एक्टिविटीज करनी ही नहीं है। जो मेरे स्ट्रैटेजी से मुझे दूर ले जाए वो एक्टिविटीज करनी ही नहीं है। सो व्हेन यू आर अलाइनिंग द फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस एंड डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन with the strategy of organization, it is called a strategic management. अब generic strategies of Michael Porter. Generic means general. So according to Porter, any organization which is competing, जो एक मार्केट में compete कर रहा है और उसे अगर सर्वाइव करना है, तो जनरल स्ट्रैटेजीज हैं जो फॉलो करने चाहिए, वो ये है: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। कॉस्ट लीडरशिप यानी आप जो भी वैल्यू आप सेट करेंगे आपके प्रोडक्ट का, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, आपके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव प्लस कस्टमर्स के लिए भी, ठीक है। आप ऐसा प्राइस करेंगे कि उस प्राइस में कोई चीज अवेलेबल नहीं है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, यू नीड टू हैव दैट यूनिक प्रोडक्ट। कॉस्ट फोकस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो बोलते हैं ना, इतना नहीं करना है डिफरेंशिएशन में कि आप खर्चा ही बढ़ा दो, आप अपने खर्चे पे भी फोकस करेंगे। डिफरेंशिएशन फोकस का यहाँ पे मतलब है मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे फोकस करना, एक ही प्रोडक्ट से मार्केट में सर्वाइव। इस डिफरेंशिएशन का मतलब है यूनिकनेस, यूनिक प्रोडक्ट लेके आओ। इस डिफरेंशिएशन का फोकस का मतलब है मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, एक प्रोडक्ट से काम नहीं करेगा। ये क्या है? जनरल स्ट्रैटेजीज। पॉटर्स 5 फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 5 फोर्सेस व्हिच शेप्स द कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री। यानी मैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे एज एन इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन मेरा कंपटीशन कितना है, कैसा है? सो इट इज आइडेंटिफाइड बाय 5 फोर्सेस। फर्स्ट, थ्रेट टू एंट्री इन द इंडस्ट्री कंसर्न। तो मैं जिस इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रही हूं, वहां मेरे थ्रेट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है एंट्री करने की। पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, मनी है, कैपिटल है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या थ्रेट्स है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स,
सप्लायर्स, यू हैव सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल देंगे, जो आपको लेबर देगा, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। तो अगर लेबर्स में ट्रेड यूनियन है तो उनकी पावर हाई होगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर्स के लिए ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं, उनकी पावर कितनी है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट करने वाले कितने हैं। एंड फाइनली राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी वहां पे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बीच की राइवलरी कैसी है, दे आर कॉम्पिटिटिव, दे आर डिस्ट्रक्टिव, दे आर फ्रेंडली, कैसे हैं। सो दीज आर द 5 forces which determine that what kind of competition is going on in a given industry. A value chain model of माइकल पॉटर, आपको बस एज एन नेम याद रखना है, कब इंट्रोड्यूस किया था इसको याद रखेंगे, और बेसिक मेन डिटेल्स या मेन एलिमेंट्स को याद रखेंगे, डिटेल में नहीं याद रखना है। वैल्यू चेन को समझते हैं। वैल्यू चेन मॉडल गिवन बाय माइकल पॉटर, he has discussed his value chain model in his book competitive advantage. See, competitive advantage का मतलब होता है sustainability as well as profitability, uniqueness। मैं अगर मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही हूं, इसका मतलब मैं सस्टेनेबल हूं, आगे भी यूज होते रहेंगे। मतलब मेरे पास में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, दे आर नॉट गोइंग टू एंड, देयर नीड वुड बी देयर, आई एम हैविंग अ प्रॉफिट एडवांटेज, दिस इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, सो एलिमेंट्स, वैल्यू चेन का मतलब है अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर कस्टमर। ठीक है, कि कस्टमर्स के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे। सी, मार्केट में हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, कस्टमर्स पे। क्यों, कस्टमर्स आर दी वन जो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे या सर्विसेज यूज करेंगे, राइट। सो वैल्यू चेन का मतलब होगा कि वो एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं कस्टमर्स का वैल्यू क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर में आपके वैल्यू चेन की एक्टिविटीज में आएगी प्राइमरी एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है, प्राइमरी के एक्टिविटीज के अंदर में आपके आ जाएंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। इनबाउंड का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरिंग, कीपिंग, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑपरेशनल यानी डे टू डे चेंज, इनपुट को कैसे आउटपुट में चेंज करते हो, ऑपरेशनल एक्टिविटी। आउटबाउंड यानी जो आप आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज। मार्केटिंग, अब जो प्रोडक्ट बना दिया उसका मार्केट और सेल तो करोगे ना, तो किसको आप कैसे मार्केट कर रहे हो, कैसे आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। एंड सर्विसेज, सर्विसेज यानी अपने कस्टमर के लिए वैल्यू मेंटेन करने के लिए आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। जैसे मैं अगर अगेन पिज्जा हट की बात करूं या डोमिनोज की बात करूं, क्या है 20 मिनट्स डिलीवरी, ऐसे ही कुछ है उनका, वो उस चीज को मेंटेन करते हैं, राइट। they maintain this in order to have that value, क्योंकि नहीं है ऐसा 20 मिनट्स का, तो बहुत सारे लोकल पिज्जा प्रोडक्ट्स ब्रांड भी अवेलेबल है, वहां से ऑर्डर कर लेंगे, बट दे मेंटेन द क्वालिटी इन द सेम दिस 20 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कैरिंग आउट दोज एक्टिविटीज। आप सर्विसेज दे रहे हो, आपको पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा इज फेमस बिकॉज इट गिविंग प्रॉपर सर्विसेज एंड इट्स क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, सपोर्ट एक्टिविटी में परचेसिंग, मतलब वेंडर्स, जो आपको, आप वेंडर्स से जाके कैसे नेगोशिएट करेंगे, रिसोर्सेस आपको कहां से मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी, कौन से लोग होंगे, कैसे काम करेंगे, रिक्रूटमेंट एंड ऑल। टेक्नोलॉजिकल, क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे आप उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पॉटर्स डायमंड मॉडल। This model is associated with national theory, international competitive advantage. If I am entering into national market, तो पर्टिकुलर एक नेशन के अंदर में, इंटरनेशनली एज ए नेशन, मल्टीपल नेशंस होते हैं, तो एज ए नेशन हाउ आई कैन गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगेन, that my company is sustainable, I am profitable and no one else is there like me. So Michael Porter ने इसके लिए दिया है डायमंड मॉडल।
So Michael Porter diamond model, also known as theory of national competitive advantage of industries, is a diamond shape framework on focuses on explaining why certain industries within a particular nation are competitive internationally while others may not. ठीक है, तो कैसे आप competitive advantage gain करेंगे? So there are factors. First, firm strategy and structure and rivalry. आप एज एन फर्म, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपका स्ट्रक्चर क्या है और आपके राइवलरी कौन है. देन कम्स फैक्टर कंडीशंस. फैक्टर कंडीशंस यानी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के क्या कंडीशंस है. देन डिमांड कंडीशन. डिमांड यानी सप्लाई, आपके कस्टमर्स की क्या डिमांड है, सप्लायर्स की क्या डिमांड है, कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, गवर्नमेंट की क्या डिमांड है, डिमांड कंडीशंस. एंड देन related and supporting industries, related activities. Here there would be always government influence. So this forms a diamond. ठीक है, ये एक डायमंड फॉर्म करता है and hence it is called as your diamond. ठीक है, ये यहाँ पे उठा हुआ है. क्लियर? एलिमेंट्स याद रखेंगे, इससे ज्यादा डिटेल्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता. Here we complete our principles and प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. पूल्ड का मतलब कृति होता है, पूल्ड इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि मेरे एचआर से जो आउटपुट निकल रहा है ना, मेरे एचआर से जो पॉलिसीज निकल रही हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनपुट है. मैंने जो पॉलिसीज बनाई वो सारे के लिए है. ठीक है, मार्केटिंग वालों ने सेल्स अच्छा किया तो सेल्स अच्छे होने से ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा या ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स नीड बढ़ेगी तो सबका काम बढ़ेगा. तो पूल्ड के अंदर में क्या होता है, कहीं से भी कुछ भी इनपुट आ सकता है, वो आउटपुट जो आ रहा है वो किसका भी इनपुट हो सकता है. क्लियर? एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? फाइन. टुमारो वी वुड बी स्टार्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो कल हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहले कल हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे. यू वांट मी टू एक्सप्लेन द पूल्ड, रेसिप्रोकल एंड सीक्वेंशियल अगेन? पूल्ड का मतलब बता दिया मैंने, अभी समझ में आ गया. रेसिप्रोकल यानी गिव एंड टेक. गिव एंड टेक का मतलब लेट्स से रिक्रूटर एंड ऑपरेशंस. ये रिक्रूटर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं वो पहले शॉर्टलिस्ट करके कहाँ जाएंगे, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वहां इनपुट होता है, वहां पे इंटरव्यू होता है. तो इन्होंने इनपुट क्या दिया, कैंडिडेट दिया, वन हु इज टू बी इंटरव्यूड. इन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने इनको आउटपुट क्या दिया, द कैंडिडेट इज सुटेबल. तो इनके लिए जो आउटपुट था वो रिक्रूटर्स के लिए इनपुट हो गया कि ओके, माय कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, ऑन दैट बेसिस आई विल डिसाइड माय नेक्स्ट वर्क. अगेन दे हैव सिलेक्टेड द कैंडिडेट. इसे गिव एंड टेक या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकल. सीक्वेंशियल, recruiters are recruiting the employees, operations are taking them in by induction, those employees are being trained and developed. Here, so there is, यहां से आउटपुट इनका इनपुट, यहां से आउटपुट इनका आउटपुट. क्लियर? यस. Ankita, now clear? Okay, so that was the session for the day. Thank you. We would be starting functions of management tomorrow.